So, dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आप सभी का हम अभिवादन करते हैं। Our Lord Jesus Christ is always ready to help every one of us. हमारा प्रभु यीशु मसीह हर समय तैयार है हम सब की सहायता के लिए। So, whatever it may be the worst condition you may going through, चाहे कोई भी ऐसी परिस्थिति, चाहे कितनी भयानक क्यों ना हो जिससे आप गुजर रहे हो, so may the entire surrounding the situations may be against you, हो सकता है आसपास की सारी परिस्थितियां आपके विरुद्ध में हो, but only one person, he will never leave you nor forsake you. लेकिन केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जो ना आपको कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा। So, his love for you is eternal. और उसका प्रेम आपके प्रति सदा के लिए So, है। if you are understanding this, यदि आप इसे समझते हैं, the worldly problem will not overcome you. संसारिक परेशानी आप पर जयवंत नहीं हो सकती। The worldly sorrows and worries will not overcome you. संसार के दुख आप पर जयवंत नहीं हो सकते। What is the real problem? वो सच्ची परेशानी क्या है? This body is controlled by the evil spirit. ये जो शरीर है ये दुष्ट आत्मा के वश में है, But the body should controlled by the Holy Spirit. लेकिन जो शरीर है वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होना चाहिए। If you are understanding this, यदि आप इसे समझ पा रहे हैं, all your problem will go away. आपकी सारी परेशानियां चली जाएंगी। Your house will be a blessed house. आपका घर एक आशीषित घर होगा। So you will not have the character of the worldly, the evil. आपके अंदर उस संसार के दुष्ट का स्वभाव नहीं रहेगा। Your character will be changed. आपका जो चरित्र है वो परिवर्तित हो जाएगा। You will not fight with your dear ones. आप अपने प्रिय लोगों से और नहीं लड़ेंगे। You will not have the spirit of anger. आपके अंदर क्रोध का आत्मा कार्य नहीं करेगा। Many things will be changed. बहुत चीजें बदल जाएंगी। Now lots of problems are coming because of our character. अभी बहुत सी समस्याएं इसीलिए आती हैं क्योंकि हमारा चरित्र ऐसा है। But this Bible very clearly says लेकिन Jesus came to give us the same character of him. लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है यीशु मसीह इसीलिए आया कि हमें अपना स्वभाव दे। He shed his blood for us उन्होंने अपने लहू को हमारे लिए बहाया है and changed us. और हमें परिवर्तित किया है। Now the blood of Jesus Christ is flowing in this body. अभी यीशु मसीह का लहू हमारी देह में बह रहा है। If you are having this realization, यदि आप इसको महसूस कर पाते हैं you will be changed. तो आप परिवर्तित हो जाएंगे। Your house will be changed. आपका घर बदल जाएगा। All the unwanted problem will go away. हर एक अनचाही समस्याएं चली जाएंगी। Your house will be filled with the grace of Jesus. आपका घर प्रभु के अनुग्रह से भर जाएगा। Your house will be the house of Jesus. आपका घर यीशु मसीह का घर बनेगा। Even though you may not have the more money, हो सकता है कि आपके पास धन की घटी हो, but you will have the peace. लेकिन आप में शांति होगी। You will have the real joy. आपके पास सच्चा आनंद होगा। You will have the great peace. आपके पास वो महान शांति होगी। That is the blessing. यही आशीष है। So today ask the Lord, इसीलिए आज परमेश्वर से पूछें, Lord, change my heart. ओ प्रभु मेरे हृदय को बदल दे, Change my mind. मेरे सोचों को बदल दे। Lord, several times I am allowing the evil spirit to work in my life. कई बार परमेश्वर मैं वो दुष्ट आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने देता हूँ। Several times I am not able to understand what I am doing. कई बार मैं नहीं समझ पाता कि मैं क्या कर रहा I हूँ। can't able to control my word. मैं अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। I can't able to control my tongue. मैं अपनी जीभा को वश में नहीं कर पाता। Because of that only the problem is coming. और उसी के कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। So today if you are realizing this, यदि आज आप इस बात को महसूस कर रहे this हैं, is a simple thing. ये बहुत सरल बात है। So if you only have to allow the spirit of conviction inside you, यदि आप उस दोष बोध की आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने देंगे, if you are saying this, though this is not at all any wrong, I can continue like this. If you are allowing hardening your heart, you can't receive the God's blessing. यदि आप ऐसा कर रहे हैं, नहीं मैं गलत नहीं कर रहा और इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप अपने हृदयों को कठोर कर लेंगे। I am right. मैं सही हूँ, He is wrong. वो गलत है।
if such a kind of a thought is overcoming you, यदि इस तरह का विचार आप में आ रहा है, you will not have the God's humbleness. तो आप में परमेश्वर की दीनता नहीं होगी। Humbleness is from God. नम्रता परमेश्वर की ओर से है। Even though you are not did any wrong, हो सकता है आपने कोई भी गलत ना किया हो, but the people are putting a false allegation upon you. लेकिन लोग आप पर झूठे आरोपों को लगाते हो। Bible says, बाइबल कहती है, Matthew chapter 5 verse 11 and 12 says, मत्ती अध्याय 5 वचन 11 और 12 कहता है, the people may speak evil against you. लोग आपके विरोध में बुरी बुरी बातें कहेंगे, You are blessed. लेकिन तुम आज धन्य हो, You are blessed. तुम धन्य हो। This is a real testimony. ये सच्ची गवाही है। So the people may say wrong about you. लोग आपके बारे में बुरा कह सकते हैं, You are blessed. तो आप धन्य हैं, Because you are the child of Jesus. क्योंकि आप यीशु मसीह की संतान हैं। So you are the child of Jesus. आप यीशु मसीह की संतान हैं। So this Bible talk about the how to do the good things. बाइबल बताती है कि कैसे हम भले कामों को करें, How to do the good things. हम कैसे अच्छे कामों को करें। That means इसका क्या अर्थ है? we are doing lots of wrong things. इसका अर्थ है कि हम बहुत कुछ गलत भी कर रहे हैं। So several things are there, कई बातें यहाँ पर हैं, but this Bible talk about something very important. लेकिन बाइबल कुछ बहुत विशेष बात करती है। If you are allowing this word inside you, यदि आप इस वचन को अपने भीतर में आने देते हैं, that's why Bible says इसीलिए बाइबल कहती है we have to confess. हमें अंगीकार करना है, Confess our sin. अपने पापों का अंगीकार करना है। If I am saying I am not a sinner, यदि मैं कहूँ कि मैं पापी नहीं हूँ, so I am not good. तो मैं सही नहीं हूँ। So the Bible very clearly says, बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है। yes, 1 John chapter 1 verse 8 to 10 says, if we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 8 से 10 कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। Verse 10 says, if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। So what is the meaning of this word? इस वचन का अर्थ क्या है? We should have the spirit of realization. हमें अपने आप को एहसास करना चाहिए, ये आत्मा होना चाहिए, The humbleness. नम्रता। Lord, change me. परमेश्वर मुझे बदल दे। You see, accept the change is the best prayer. अपने आप को बदलना, अपने आप को गलत अंगीकार करना, ये सबसे अच्छी प्रार्थना है। Jesus never allowed us to condemn others. यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि दूसरों को दोषी ठहराओ। Jesus always spoken in this Bible, यीशु मसीह ने इस बाइबल में सदैव यही कहा है, look yourself. अपने आप को देखो, I will take care of others. मैं दूसरों के बारे में देख लूंगा। You don't to say anything about others. आप दूसरों के विषय कुछ ना कहें। If they are doing evil against you, यदि वो आपके विरुद्ध में बुराइयां करते हैं, don't talk about them. उनके बारे में बातचीत ना करें। I will take care. मैं देख लूंगा। You be a good person. तुम भले व्यक्ति बनो, You be a good person. तुम अच्छे व्यक्ति बनो। So dear friends, this Bible is a blessed book. हाँ प्रिय मित्रों, ये बाइबल आशीषित किताब है। Lots of spiritual things are there. बहुत सी आत्मिक चीजें इसमें हैं, But the basic thing is our good character. लेकिन जो बुनियादी बात है वो है हमारा अच्छा चरित्र। So today the Lord is speaking to you. आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। If any area you want
the change. यदि किसी भी क्षेत्र में आप बदलाव चाहते हैं Today, allow the spirit of realization. तो आज उस दोषबोध की आत्मा को कार्य करने The दें। Holy Spirit will convict you. ओ पवित्र आत्मा आपको बोध कराएगा। John 16 verse 7 and 8 says, यूहन्ना अध्याय 16 वचन 7 और 8 कहता है, the Holy Spirit will come and give you the heart of conviction. वो पवित्र आत्मा आएगा और आपको पश्चाताप का हृदय देगा। That is very important. वो बहुत जरूरी है। If inside your house, यदि आपके घर के भीतर में husband पति full of like Jesus, धार्मिकता से परिपूर्ण, wife पत्नी full of like Jesus, यीशु मसीह के समान, this is God's expectation. यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। Simple thing. बहुत सरल बात है, Simple thing. बहुत सरल है। If I am changing, यदि मैं बदल रहा हूँ my family will be changed. मेरा परिवार बदल जाएगा। So this is very important. ये बहुत जरूरी है। Today, why you are having problem? आज क्यों आप में समस्याएं, Why there is no peace in your life? क्यों आपके जीवन में कोई शांति नहीं है? Some basic things you have to change. कुछ बुनियादी बातें आपको बदलनी जरूरी हैं। God will help you. परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। Step by step He will help you. एक एक कदम पे वो आपकी सहायता करेंगे। Every day He want to work in our lives. हर दिन वो हमारे जीवनों में कार्य करना चाहते हैं। Today you allow something good thing to your heart. आज अपने हृदय में कुछ अच्छी बात को आने दीजिए। Hereafter I will not use any wrong words. आज के बाद मैं कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करूंगा। I will not respond if anybody is speaking anything. मैं कोई भी बात में उनके विरोध में नहीं कहूंगा यदि कोई मेरे विरुद्ध कर रहा है कुछ। I will be like Jesus. मैं यीशु के समान होऊंगा। I will be like Jesus. मैं यीशु मसीह के समान बनूंगा। How many of you are willing? आप में से कितने लोग तैयार हैं? God is looking your heart. परमेश्वर आपके हृदयों को देख रहे So हैं। if you are really allowing the change inside, यदि आप अपने भीतर में सच में बदलाव को आना देना चाहते हैं, by humbling yourself before God, परमेश्वर के आगे अपने आप को नम्र बनाकर, your house will be blessed. आपका घर आशीषित हो Your जाएगा। personal life will be blessed. आपका निजी जीवन आशीषित हो जाएगा। Your body will be the temple of the Holy Spirit. आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनेगा। Small things. छोटी छोटी बातें, If you are changing, यदि आप बदलते जा रहे हैं, your house will be blessed. आपका घर आशीषित होगा। Between husband and wife, पति और पत्नी के बीच में great peace, एक महान शांति होगी, great joy, एक महान आनंद होगा, great happiness. महान खुशी होगी। That is the God's given blessing. ये परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषें हैं। To give that blessing, only Jesus suffered a lot on the cross. यही आशीषों को देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे बहुत दुख उठाया। When my daughter will speak like me, कब मेरी बेटी मेरे समान बोलेगी? when my son is speak like me, कब मेरा बेटा मेरे समान बोलेगा? when my children have the good heart like me. कब मेरे संतानों का हृदय मेरे जैसा होगा? This is the God's expectation. यही परमेश्वर चाहते हैं। For this purpose only we have to pray. इसी के लिए हमें प्रार्थनाओं को करना है। To change our character, we have to pray. अपने चरित्र को बदलने के लिए हमें प्रार्थनाओं को करना We have to है। pray for ourselves. हमें खुद के लिए प्रार्थनाओं को करना है। If your heart is good before God, यदि आपका हृदय परमेश्वर के सामने भला है, you are remaining in Christ. तो आप मसीह में बने हुए हैं। That is the John chapter 15 verse 7. ये है यूहन्ना अध्याय 15 वचन 7। John 15:7 says, यूहन्ना अध्याय 15 वचन 7 कहता है, You in me, यदि तुम मुझ में and my words are in you. और मेरी बातें तुम में बनी रहें, Whatever you want, it will be given. तो जो चाहो मांगो। What is the meaning of this word? इस बातों का क्या अर्थ है? It's well talking about our character. ये बहुत भली रूप से बात कर रहा है हमारे चरित्र के विषय में, Our character. हमारे चरित्र के विषय। If you live like Jesus, यदि आप यीशु मसीह के समान जिएंगे, somebody is provoking your anger to fight, यदि कोई आपको उत्तेजित कर रहा है कि आप क्रोधित हो, you are filled with the love of Jesus. लेकिन आप मसीह के प्रेम से भरे हुए हैं, You are showing your good character. आप अपने भले चरित्र को दिखाते हैं।
The other side, the enmity is coming, दूसरी तरफ से तो शत्रुता आ रही है, but you are giving the positive peace, love, joy, the fruit of the Spirit of Jesus. लेकिन आप केवल अच्छी चीजों को दिखा रहे हैं, प्रेम, आनंद, शांति, फलों को दिखा रहे हैं। Galatians 5:22-23. गलातियों अध्याय 5 वचन 22 और 23। The fruit of the Spirit. आत्मा के फल, The fruit of the Spirit. आत्मा के फल। So, dear friend, this is a very simple message. प्रिय मित्रों, ये बहुत सरल संदेश है। If you are applying this, यदि आप इसको अनुसरण करते हैं your house will be like a heavenly blessed house. तो आपका घर स्वर्गीय आशीषित घर हो जाएगा। Jesus came to change our house, यीशु मसीह इसीलिए आया कि हमारे घरों को बदल दे। not a fighting house, एक लड़ाई करने वाला घर नहीं, not a going through the sinful addiction house. एक पापमय लतों से भरा हुआ घर नहीं, House of peace, वो शांति का घर, house of joy, आनंद का घर, house of rest. वो शांति और आराम का घर। Matthew 11:28 says, मत्ती 11:28 कहता है, come to me, मेरे पास आओ, come to me, मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I want to come inside your house. मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूँ। I want to bless your house built it upon the rock. मैं तुम्हारे घर को जो चट्टान पर बनाया गया है आशीष देना चाहता हूँ। Matthew 7:24. मत्ती 7:24 कहता है, If anyone is full of the character of Jesus, यदि कोई मसीह के स्वभाव से परिपूर्ण है their house is built it upon the rock. तो उनका घर चट्टान पर बनाया गया है। Dear friends, 100% of problems are coming because of us. ओ प्रिय मित्रों, 100% समस्याएं केवल हमारे ही कारण आती हैं। If I change, यदि हम बदल जाएं, my wife change. तो हमारी पत्नी बदल सकती है। If both of us as a parent we change, हम अगर माता पिता होने के नाते हम दोनों बदलते हैं our children will be changed. तो हमारी संतानें बदल जाएंगी। This is the spiritual life. ये है आत्मिक जीवन। Spiritual life is not outside. आत्मिक जीवन बाहर ही नहीं है, Spiritual life is inside. आत्मिक जीवन आपके अंदर है। Spiritual life is my home. वो आत्मिक जीवन आपका खुद का घर है। Several times we are not understanding this. कई बार हम इन बातों को नहीं समझ पाते। We want to go out. हम बाहर जाना चाहते हैं, First we have to set right our own house. लेकिन पहले हमें खुद के घर को सही करना जरूरी Let है। Jesus come here first. पहले अपने घर में यीशु को बुलाएं, Then you will be the testimony. तो आप गवाही बनेंगे। Bible very clearly says. बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है। Revelation 3:20. प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20। I am knocking the door. मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता I am हूँ। knocking the door. मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। I want to come inside your house. मैं तुम्हारे भीतर घर में भीतर आना चाहता हूँ। Remove your anger. अपने क्रोध को दूर कर, Remove your unwanted character. अपने अनचाहे चरित्र को दूर कर। Several years I am waiting. कई वर्षों से मैं इंतजार कर रहा But हूँ, there is no change in your life. लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं है। For the name's sake, you are saying I am a Christian. केवल नाम आधारी आप मसीही जीवन जी But रहे I am हैं। not coming inside you. लेकिन मैं तुम्हारे अंदर नहीं आ पा रहा। If you open today, यदि आज आप खोलते हैं I will come in. तो मैं भीतर आऊंगा, I will come in. मैं भीतर आऊंगा। You will be like me, आप मेरे समान बनेंगे, sitting with Jesus. यीशु मसीह के साथ I बैठेंगे। will come in and sit with you. मैं आऊंगा और तुम्हारे साथ वास करूंगा। I will change your house. मैं तुम्हारे घर को बदल दूंगा। Today God want to change you. आज परमेश्वर आपको बदलना चाहते हैं। So the Bible is a wonderful book. बाइबल अद्भुत किताब है So we have to implement all the things written here. और इसमें जो कुछ भी लिखा है हमें सब कुछ मानना जरूरी। So Jesus want change you यीशु मसीह आपको बदलना चाहते हैं as a good person. एक भले मनुष्य में, As a good person. एक भले मनुष्य में। If you are irritating with somebody, यदि आप दूसरों से क्रोधित हैं Jesus is not there. तो यीशु वहां नहीं है। Stop it. आप रुक जाएं, Stop it. रुक जाइए। Don't put all your anger upon your children. अपना सारा गुस्सा अपने बच्चों पर ना निकालें, That is wrong. वो गलत है, That is wrong. गलत है। This Bible says that.
ये बाइबल कहती है। That's why the change is step by step change is very important. इसीलिए एक एक कदम पर बदलाव आना बहुत जरूरी है। Then only our spiritual life will be blessed. तभी हमारा आत्मिक जीवन आशीषित हो सकता The है। devil will not give you the heart for change. वो जो शैतान है वो आपको ऐसा हृदय नहीं देगा कि आप बदलें। All the time the devil will stop you. हर समय वो शैतान आपको रोकना चाहेगा। All the time the devil will say, look others. हर समय वो आपको कहेगा दूसरों को देख, You are correct. तू सही You are है, correct. तू ठीक है। If you are allowing this, यदि आप ऐसा होने दे रहे हैं this is dangerous. तो ये बहुत खतरनाक है। Let us allow the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को आने दीजिए। Lord, without you I am nothing. ओ परमेश्वर, आपके बिना हम कुछ भी नहीं। Lord, because of you only I am living. ओ प्रभु जी, केवल तेरे ही कारण मैं जीवित हूँ। I am living because of Jesus. ओ प्रभु, मैं यीशु मसीह के कारण जीवित हूँ। Lord, I am ready for the change. ओ प्रभु, मैं तैयार हूँ बदलने के लिए। I am ready for the change. मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। Are you saying from your heart? क्या आप इसे अपने हृदय से कहते हैं? Jesus knows everything. यीशु सब जानता है। Just to remind you only, we are here as a God's people. केवल आपको इस बात का बोध कराने के लिए हम यहाँ पर हैं, परमेश्वर के दासों के रूप। Allowing is your work, your job. लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे, ये आपका काम है। Many blessings want to follow you. बहुत सी आशीषें आपके पीछे आना चाहती हैं। Change your character. अपने चरित्र को बदल दीजिए। Change your character. अपने चरित्र को बदल दीजिए। So 3 John verse 11 says, तीसरा यूहन्ना अध्याय वचन 11 कहता है, that's why I have only one chapter. क्योंकि इसमें केवल एक ही चैप्टर है। 3 John verse 11. तीसरा यूहन्ना अध्याय 11 It says, ये कहता है, dear friend, हे प्रिय, never imitate evil, बुराई के नहीं but imitate good. पर भलाई के अनुयायी हो। The person who does good is from God. जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है। The person who does evil has never seen God. और पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। This word may speak to you directly. ये वचन आपसे बहुत स्पष्ट बात कर रहा है। Never imitate evil. कभी भी बुराई का अनुसरण ना करें। Imitate the good things. हमेशा भली बातों का पीछा करें। The person who does good is from God. और वो जो व्यक्ति अच्छा करता है वो परमेश्वर की ओर से है। What is the meaning? इसका अर्थ क्या है? Anyone is humble. यदि कोई भी दीन होता है, More humble. और दीन होता है, Don't showing the character of the evil. तो उस दुष्ट का स्वभाव नहीं दिखाता, Full change. पूरा बदलता है। They are from the Lord. तो वो परमेश्वर की ओर से है। Other people, और दूसरे लोग, you are ready. God is helping to change. आप तैयार हैं, परमेश्वर आपकी बदलने में सहायता करेंगे। Because we can't live like this. क्योंकि हम इस तरह से नहीं जी सकते। The same word says in another way, और यही वचन दूसरी तरह बात करता है। dear friend, प्रिय मित्रों, don't let this bad example influence you. ये बुरे उदाहरणों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। Your friend is a good, यदि आपका मित्र भला है you will be good. तो आप अच्छे होंगे। Friend means not the worldly friend, मित्र का अर्थ संसारिक मित्र नहीं, your character. आपका चरित्र, What you are doing, आप क्या कर रहे हैं what is inside your heart. और आपके भीतर में क्या है। So that's why one proverb says like this. इसीलिए एक नीति वचन इस प्रकार कहता है। No, general proverb. एक नीति वचन का एक वचन है, Tell me your friend. Tell me who is your friend. मुझे बता तेरा मित्र कौन है। Tell me who is your friend. मुझे बता तेरा मित्र कौन है। I will tell you who you are. मैं बताऊंगा कि तू कौन है। I will tell you who you are. मैं बताऊंगा कि तू कौन है। So this word is speaking that only. और ये वचन इसी बात को कहता है। We are the example of Jesus Christ. हमें यीशु मसीह का उदाहरण बनना है। We are the example of Jesus हम Christ. खुद यीशु मसीह के लिए उदाहरण हैं। It will not come one day. वो एक ही दिन में नहीं होगा। How many days you are allowing the change?
कितने अधिक दिन आप बदलाव को आने दे रहे You हैं। should take a decision and determination. आपको एक दृढ़ निर्णय को लेना है। Hereafter, I will not get angry with anyone. आज के बाद मैं किसी से भी क्रोधित ना This होऊंगा decision should come today itself. और ये बदलाव आज ही आना चाहिए। Hereafter, I will not fight with anyone. आज के बाद मैं किसी से नहीं लड़ूंगा। I will not have any unwanted thoughts, the negative things in me. मैं कोई भी अनचाहे विचार और नकारात्मक बातों को अपने अंदर नहीं आने दूंगा। These are the God-given, the time to change. ये वो समय है जो परमेश्वर ने दिया है हमें बदलने के लिए। I should be a good example. हमें एक अच्छा उदाहरण बनना है। I will only follow the good things. मैं केवल भली बातों का अनुसरण करूंगा So then you will be the children of God. और उसके बाद आप परमेश्वर की संतान बनेंगे। If we are still doing evil, यदि अभी भी हम बुराई को करते हैं, Bible says, बाइबल कहती है, such a person not seen God yet. तो उसने कभी परमेश्वर को नहीं देखा। So let us allow this word. तो इसीलिए इस वचन को अपने जीवन में आने दीजिए। Hereafter our house will be the peaceful house. इसके बाद आपका घर एक शांति का घर होगा। No more fight. कोई भी झगड़ा नहीं, No more misunderstanding. कोई भी गलत फहमियां नहीं। We are going to love Jesus more. हम यीशु मसीह से और प्रेम करेंगे। Dear friends, Bible very clearly says, प्रिय मित्रों, बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है, money problem is not from God. जो धन की समस्याएं हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। If you are going through some problem, यदि आप किसी समस्या से गुजर रहे the हैं, problem is with you. तो वो समस्या आपके ही साथ है। Simply going for the borrowing, आप यदि कर्जा उठाते हैं then that will be double, तो वो दुगना हो जाएगा triple. और उसके बाद तिगना हो जाएगा। Then you can't come out of it. तो आप उसके बाद बाहर नहीं आ पाएंगे। Bible says, बाइबल कहती है, before you do anything, कुछ भी करने से पहले pray. प्रार्थना कीजिए। Pray. प्रार्थना कीजिए। That is the Matthew 6:33. यही है मत्ती 6 का 33। Matthew 6:33 says, मत्ती 6 का 33 कहता है, seek first पहले उसके God's kingdom and His righteousness. पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर, The worldly blessing will follow you automatically. वो संसारिक आशीषें आपके पीछे आएंगी। Every house should be the house of prayer. हर एक घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। Every house should be the house of prayer. हर एक घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। You need money. यदि आपको धन चाहिए, Pray. प्रार्थना कीजिए, Read the Bible. बाइबल को पढ़िए। You want to come out of the loan problem? यदि आप कर्जे की समस्या से बाहर आना चाहते हैं, Pray. प्रार्थना कीजिए, Read the Bible. वो बाइबल को पढ़िए Love Jesus more. और यीशु से प्रेम कीजिए। This is the seeking God's kingdom and His righteousness. यही है उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना। No problem will come inside your house. कोई भी समस्या आपके घर में कभी ना आएगी। Full of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरा हुआ। The Holy Spirit is the unspeakable joy. पवित्र आत्मा बयान ना किया जाने वाला आनंद है। Romans 14:17 says, रोमियो 14 का 17 कहता है, the kingdom of God is the unspeakable joy of the Holy Spirit. परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा का बयान ना किया जाने वाला आनंद है। Do good. भला करें, Imitate good. भलाई का अनुसरण करें। Matthew 6:35-36. मत्ती अध्याय 6:35-36. 6 का 35 और 36 वचन। This word of God says, ये वचन कहता है, love your enemies. अपने शत्रुओं से प्रेम करो, Help them. उनकी सहायता करो, Help the needful people. जो भी जरूरतमंद है उनकी सहायता करो And lend to them without expecting to get anything back. और उनको उधार दो, उनसे बिना कुछ पाने की आशा किए Then बिना। you will have a great reward. तो आपके पास एक महान प्रतिफल होगा You will be the children of the Most High God. और आप उस धर्मी परमेश्वर की संतान होंगे। The Lord is
kind to the unthankful and evil people. जो परमेश्वर है, जो कृतज्ञ नहीं है, बुरे लोग हैं, उन पर भी दयालु है। Be merciful. इसीलिए दयालु बने, Your Father in heaven also merciful. क्योंकि आपका पिता स्वर्ग में भी दयालु है। So what is this meaning? इसका अर्थ क्या है? Do good. भलाई कीजिए You also leave a good testimony. और आप दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। So your light should be shine upon others. आपकी ज्योति दूसरों के सामने चमके। Matthew 5:16 says, मत्ती 5:16 कहता है, let your light shine among the people. अपना उजियाला लोगों के सामने चमकने दे, Then they will see the good that you do and praise your Father in heaven. तो इसीलिए वो तुम्हारे भले कामों को देखकर जो तुम करते हो स्वर्ग में पिता की महिमा करेंगे। Pray for others. दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए, Pray for others. दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। Luke 6:31 says, लूका 6:31 कहता है, Luke 6:31 says, लूका 6:31 वचन कहता है, treat others the same way you want them to treat you. दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वह आपके साथ करें। Very nice word. बहुत अच्छा वचन है। If you are liberal, यदि आप स्वतंत्र हैं you will be liberal. You will receive the liberally. तो यदि आप उदारता से देंगे, आप उदारता से पाएंगे। You are doing good, यदि आप भला करेंगे surely the goodness and mercy will follow you. तो निश्चय भलाई और करुणा आपका पीछा करेंगे। Treat others the same way you want them to treat you. दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं दूसरे आपके साथ करें। This is the living word of Jesus. ये यीशु मसीह का जीवित वचन है। Try to do like this. ऐसा ही करने की इच्छा करें। So, if you need a blessing, यदि आपको आशीष चाहिए you do the help to others. तो आप दूसरों की सहायता कीजिए। Job, the book of Job having a 42 chapter. अय्यूब की किताब में 42 अध्याय हैं। 41 chapter he is struggling. और 41वें अध्याय में वो संघर्ष में हैं। Then the last chapter only he came to know the solution. लेकिन वो आखिरी अध्याय में उसको पता चला समाधान का। Job 42:10. अय्यूब 42:10। Job 42:10 says, अय्यूब अध्याय 42 वचन 10 कहता है, the Lord turned the captivity of Job after he prayed for his friends. यहोवा ने अय्यूब की बंधुआई को बदल दिया जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। Pray for others. दूसरों के लिए प्रार्थना Pray कीजिए, for others. दूसरों के लिए प्रार्थनाओं को कीजिए। You are going through some problem, यदि आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं so pray the same problem for others first. तो दूसरे भी जो उसी समस्या से गुजर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देंगे। Treat others the same way you want them to treat you. और दूसरों से ऐसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं लोग आपसे करें। Philippians 2:4 says, फिलिप्पियों अध्याय 2 वचन 4 कहता है, important word, everybody note it. ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है, हर कोई लिख ले। Philippians 2:4 says, फिलिप्पियों अध्याय 2 वचन 4, don't be concerned only about your own interests, केवल अपने ही हित की चिंता ना कर, but also be concerned about the interest of others. बल्कि दूसरों के हितों के बारे में भी चिंतित रहें। These are the characters of Jesus. ये यीशु मसीह का स्वभाव है। Step by step try. एक एक कदम पर आप इसको करने की कोशिश करें। Not one day everything will not come. एक ही दिन में सब कुछ नहीं आ जाएगा। Be humble. नम्र बने। Lord, give me a humbleness. ओ परमेश्वर मुझे नम्रता को दे। The humbleness is the very important. जो नम्रता है वो बहुत जरूरी है। The humbleness will change your character. जो नम्रता है वो आपके स्वभाव को बदल देगी। John chapter 1 verse 12 and 13 says, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12 और 13 कहता है, whosoever believe in the name of the Lord Jesus Christ, जो कोई यीशु मसीह के वचन नाम पर विश्वास करता है, God given them the right to become the children of God. तो उनको परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है कि वो परमेश्वर की संतान कहलाएं। Then you are born of God. तब आप परमेश्वर से जन्मे हैं। We are born of God. हम परमेश्वर से जन्मे हैं। That's why we can do the good things. इसीलिए हम भले कामों को कर सकते हैं।
Bible very clearly, it's talking about our salvation. बाइबल हमारे उद्धार के विषय बात करती है। John chapter 1:13 is talking about our salvation. यूहन्ना अध्याय 1:13 हमारे उद्धार के लिए कहता है। They did not become God's children by natural means. वो ना तो लहू से ना शरीर से परमेश्वर की संतान बने हैं। They being born as the children of not a human father. वो एक मनुष्य के समान एक मनुष्य के संतान नहीं बने हैं। God himself was their father. वो स्वयं परमेश्वर उनका पिता था। We are having a great father. हमारे पास एक महान पिता है। We are having a loving father. हमारे पास एक प्रेम करने वाला पिता है। The father's characters belongs to the children. और जो पिता का स्वभाव है, चरित्र है, वही बच्चों का भी है। Automatically the father's blessing will come upon the children. खुद ब खुद पिता की आशीषें बच्चों पर उतर आती हैं। So several times we want only the blessing of father. कई बार हम केवल पिता की आशीषों को चाहते हैं। We no need the characters of the father. लेकिन हम पिता के चरित्र को नहीं चाहते। Character is important. जो चरित्र है वो बहुत जरूरी है। Character is our testimony. चरित्र ही हमारी गवाही है। So today let God change us. इसीलिए होने दे कि परमेश्वर आज हमें बदले। Lord change me. ओ परमेश्वर मुझे बदल दे। Control my words, Lord. ओ परमेश्वर मेरे शब्दों पर नियंत्रण कीजिए। Lord, my house should be the blessed house of Jesus. ओ प्रभु जी, मेरा घर आपके द्वारा आशीषित घर होना चाहिए। If something you are not able to give up from your life, यदि कुछ बातों को आप अपने जीवन में नहीं छोड़ पा रहे, meditate the cross. तो आप क्रूस पर मनन कीजिए। The cross is the source of the changing place. क्योंकि वो जो क्रूस है वो स्रोता है बदलने के लिए। The cross will change your character. जो क्रूस है वो आपके चरित्र को बदल देगा। Meditate more the cross. इसीलिए क्रूस पर अधिक मनन कीजिए। So the Holy Spirit is going to help you. पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। Everybody close your eyes right now. हर एक जन अपनी आंखों को अभी बंद करे। Lord, change my character. ओ प्रभु जी, मेरे चरित्र को बदल दे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा come and fill me, Lord. मुझे आकर भर दीजिए प्रभु जी। Change my character. मेरे चरित्र को बदल दीजिए। Lord, I will not fight anymore with anyone. ओ परमेश्वर, अब मैं कभी झगड़ा नहीं करूंगा किसी I will से। not angry with anyone. प्रभु, मैं किसी से भी अब क्रोधित नहीं रहूंगा। I will not backbite about anyone. ओ परमेश्वर, मैं किसी के विषय निंदा नहीं करूंगा। I will not gossip about anyone. मैं किसी के विषय चुगली नहीं करूंगा। Lord, change me. ओ प्रभु, मुझे बदल दे। Change me. प्रभु, मुझे बदल दे। Lord, you shed your precious blood for me. ओ प्रभु, तूने अपने कीमती लहू को मेरे लिए बहाया है। Lord, the blood of Jesus Christ shall cleanse me now. ओ प्रभु, यीशु मसीह का लहू मुझे अभी शुद्ध करे। Change me, Lord. ओ मुझे बदल दे यीशु। Lord, I want to speak like Jesus. ओ प्रभु, मैं तेरे यीशु मसीह के समान बोलना चाहता हूँ। Our house should be a house of Jesus. हमारा घर यीशु मसीह का घर होना चाहिए। Everyone asks the Lord. हर एक जन परमेश्वर से कहे, This is the basic spiritual life. ये बुनियादी मसीही जीवन है। Your character is the spiritual things. आपका जो चरित्र है वो आत्मिक बात है। Your character change is very essential. आपके चरित्र का बदलना बेहद जरूरी है। Lord is sending the cleansing spirit upon every one of you right now. परमेश्वर अपने शुद्ध करने की आत्मा को हर एक पर अभी भेज रहा है। The Holy Spirit is coming and filling you. पवित्र आत्मा आ रहा है और आपको भर रहा है। The cleansing grace is coming upon your house today. ओ शुद्धिकरण की आत्मा आपके घर पर अभी उतर रही है। The blood of Jesus Christ is cleansing you. ओ यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध कर रहा The है। Lord is cleansing every home. ओ यीशु मसीह हर एक घर को शुद्ध कर रहा है। Everyone claim the grace from the blood of Jesus. हर एक जन यीशु के लहू से अनुग्रह को मांग ले। 1 John 1:7 says, पहला यूहन्ना 1:7 कहता the है, blood of Jesus Christ shall cleanse you from all the bad character. यीशु मसीह का लहू आपको सारे बुरे चरित्र से शुद्ध करे। The blood of Jesus Christ is ready to change you. यीशु मसीह का लहू तैयार है आपको बदलने के लिए। Everyone allow the blood of Jesus right now. हर एक जन अभी यीशु के लहू को आने दे। Lord, cleanse me. ओ प्रभु, मुझे
धो दे। through the blood of Jesus. ओ यीशु मसीह के लहू से The grace is coming upon you right वो now. अनुग्रह आपके ऊपर अभी उतर रहा है। The Lord want to bless your house. परमेश्वर आपके घर को आशीष देना चाहता है। Today the Lord want to give you a new heart. ओ परमेश्वर आज आपको नया हृदय देना चाहता है। You are a new creation from today onward. आज के दिन से आप नई सृष्टि है। The old things are gone. पुरानी बातें चली गई। Everything is new. हर एक चीज नई हो गई। New blessings are coming. नई आशीषें उतर रही है। New grace is coming. नया अनुग्रह उतर रहा है। Everyone receive the new हर grace. एक जन नई अनुग्रह को प्राप्त करे। Lord bless your children. ओ परमेश्वर अपनी संतानों को आशीष दीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Amen.